Hi, ma'am. Hi, everyone. I am Khushi Gupta, the part of Webicon India. So, guys, our today's topic is managing stress in difficult times. And for representing this topic, we have our today's presenter, Ms. Stuti Kumar, and she has done masters in clinical psychology, and she is the founder of Emotional Wellbeing Helpline. And I'm sure today she'll definitely gonna enrich our knowledge about stress management, and this session will definitely gonna be so much interactive. Definitely. Thank you so much Yes, for this welcome, Khushi. It is thank my you. pleasure here in the webinar. And as Khushi rightly gave my introduction, I don't think I need to say anything more. So I'll quickly brief about myself. So I'm Stuti. I have done my master's in clinical psychology, and I have worked in a lot of places in psychology, and I have a lot of experience with the hospital work and other things as well. Also, you must have noticed I've joined from my page Emotional Wellbeing Helpline. So I will brief a little bit about the organization and what exactly we do there, and then we can begin with our today's interesting discussion, which I've planned for everyone. So, Sure. Emotional Wellbeing Helpline is basically it's an organization where we provide mental health services, and on the helpline we give free of cost counseling and free of cost help for anyone and everyone in need. So it doesn't have to be that you need to be of certain age or you cannot take help if there's a certain problem. So we provide all kind of mental health counseling and help, everything for free. This is an initiative started with me and my colleague Ruta. I see her; she's joined there. And hi, Ruta. So we both started this in the pandemic, as we all know that pandemic itself means a lot of stress and a lot of burnout, as you rightly said. So this Yes. is a small initiative from our side where we thought that okay, awareness and help is very much needed. So that's a little bit about myself and the organization. Now, moving on to the topic, as I heard a lot of things with Khushi very rightly said that there are two sides to stress. One is negative and one is positive. So, in our terms, like in psychology terms, we say that positive stress, like a little bit, थोड़ा बहुत stress होना बहुत जरूरी है to motivate yourself, to push yourself ahead. But you have to have a balance. वो balance create रहना चाहिए जहाँ पे आप पूरा नेगेटिव नहीं जा रहे हो और पूरा पॉजिटिव भी नहीं हो रहे हो. तो कोट सुना होगा या ये सुना ही होगा कि ज्यादा पॉजिटिविटी भी हार्मफुल है. तो कुछ भी हम Yes. ज्यादा करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा पॉजिटिव चीज लाइक कोई बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअली आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है और वहां पे भी आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, तो वो भी थोड़ा हार्मफुल टाइप ऑफ थिंकिंग में चला जाता है. तो एज द टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, सो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अभी स्ट्रेस क्या है एंड वो टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज फेस्ड इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. हर किसी को स्ट्रेसफुल फील होता है, और आजकल के टाइम में जब वी आर फेसिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ में भी, जैसे लाइफ टर्न ले रही है या स्टैंड स्टिल है या जॉब का इश्यू है या फिर बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं. ऐसा ही नहीं कि बाहर जो हमारे साथ चीजें हो रही है या सोशली जो हमारे साथ चीजें हो रही हैं वही अफेक्ट करती हैं. इंटरनली भी कभी कभी हम अपने आप को ही नेगेटिव बात करके या नेगेटिव सेल्फ टॉक में या काफी अपने बारे में नेगेटिविटी बिल्ड करके हम जो थॉट्स रखते हैं अपने बारे में वो भी कभी कभी स्ट्रेस इंड्यूसिंग होती है. तो ऑल नो हाउ इट इज, वी ऑल नो स्ट्रेसफुल सबको फील होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे भी फील होता है कभी कभी, ट्रस्ट मी, कभी कभी नहीं बहुत बार फील होता है. तो कैसे इसको टैकल करना है, तो मेन पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट का आज वो है. तो कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैंने देखा है कि काफी यूजफुल हैं. लाइक सुनने में बहुत नॉर्मल लगेंगी या बहुत सिंपल लगेंगी कि अरे ये तो मैं रोज करती हूँ, मैंने बहुत बार किया है, और मुझे बाद में लेकिन जब मैं समझाऊंगी उसकी साइकोलॉजी पीछे तब आपको समझ आएगा कि हाँ एक्चुअली ये छोटी सी जो हॉबी है या ये छोटी सी जो चीज मैं डेली रूटीन में कर सकती हूँ जिससे स्ट्रेस, लाइक स्ट्रेसफुल टाइम पे जब स्ट्रेस फील होता है वो कैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं फील हुए,
बट उसको टैकल कैसे करना है, उस पर रिएक्शन कैसे देना है. सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद अ फ्यू टेक्निक्स जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी कह सकते हैं, या फिर योर पर्सनल कोपिंग मैकेनिज्म टेक्निक्स भी कह सकते हैं, जो भी वट एवर सूट्स योर थिंग. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो साइकोलॉजी में सिखाई जाती है, विच इज कॉल्ड द ABC स्ट्रैटेजी. मैं रिपीट करूंगी, इट्स कॉल्ड ABC स्ट्रैटेजी, जिसमें A, B और C के डिफरेंट मीनिंग्स है. तो उसका मैं एब्रिविएशन देती हूँ. तो ABC स्ट्रैटेजी इज A stands for awareness, B stands for balance and C stands for control. तो एक एक अगर हम देखने जाएं तो अवेयरनेस इज आपको एक्चुअली कौन सी सिचुएशन में स्ट्रेसफुल ज्यादा फील होता है, या कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई है लाइफ में जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है. दैट इज अवेयरनेस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिस करना. कभी कभी हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फिर इतने नेगेटिव उसमें चले जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है या कौन सी सिचुएशन हमें हैम्पर कर रही है. सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए. उसमें हाउ डू यू रिएक्ट टू स्ट्रेस भी आता है कई बार, ताकि बेसिकली अगर हम नेगेटिव रिएक्शन दें स्ट्रेस को या पॉजिटिव रिएक्शन दें, दोनों के अलग अलग साइड्स हैं. एंड पॉजिटिव रिएक्शन दे स्ट्रेस को तो वो यूजफुल रहता है ज्यादा नेगेटिव से. सो दैट इज द अवेयरनेस पार्ट ऑफ द ABC स्ट्रैटेजी. सेकेंड इज बैलेंस. एज खुशी इन द स्टार्ट सेड कि देयर आर टू साइड्स ऑफ स्ट्रेस, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. तो उसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में. ऐसा नहीं कि स्ट्रेस बिल्कुल किसी को होना ही नहीं चाहिए, या क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आई शुडंट फील स्ट्रेस, ऐसा नहीं है. तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस को कितना उसको पॉजिटिवली आगे अपनी लाइफ में केटर करते हैं, या नेगेटिव स्ट्रेस पे कितना फोकस कर रहे हैं, तो वो बैलेंस रहना चाहिए हमेशा लाइफ में, कि ज्यादा नेगेटिव पे भी फोकस नहीं करना है, ज्यादा पॉजिटिव पे भी फोकस नहीं करना है. तो अवेयरनेस एंड बैलेंस हमारा ABC स्ट्रैटेजी का हो गया. थर्ड पार्ट इज कंट्रोल. अब ये सब तो समझ गया कि अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने कैसे रिएक्ट किया, या फिर बैलेंस है कि नहीं, कि मैं ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रही हूँ, ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो रही हूँ. तो जब बैलेंस और अवेयरनेस दोनों पे काम हमने किया, तो उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल. अब ये हमारा आज का टॉपिक का मेन डिस्कशन है कि हाउ डू वी कंट्रोल. अब पता तो चल गया मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन अब दिमाग में तो अभी सिग्नल पहुंच गया कि अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, काफी स्ट्रेस हो रहा है, उसको मैं कंट्रोल कैसे करूंगी. तो 3-4 टेक्निक्स हैं. टेक्निक्स क्या है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे स्ट्रेस लेवल्स हमारी बॉडी में कम होते. साइंटिफिकली प्रूवन है ये, साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है ये, कि स्ट्रेस लेवल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं ये सब चीजें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपकी जो भी हॉबी है, आई एम श्योर सबकी एक अच्छी कोई हॉबी होगी, जैसे रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, या फिर वॉक करना, ड्राइव पे जाना, कुछ भी. जैसे खुशी, यू कैन टेल मी व्हाट योर हॉबी इज. Singing, yes. So see, that's beautiful. Now Khushi loves to sing and that's her hobby. So why not, Khushi, convert your hobby to whenever you're stressed into a stress buster. ये कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें करनी पसंद है, ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पे हम भूल जाते हैं कि अरे वो कर सकते थे, उससे हमें अच्छा फील होता है. हम हमेशा नेगेटिव पे फोकस ज्यादा रखते हैं कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे स्ट्रेस होता है. पर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग, कि एक अपनी वीकनेस से ज्यादा थोड़े स्ट्रेंथ्स और हॉबीज पे अगर काम किया जाए तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सीरियसली बहुत ज्यादा वर्क करता है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. जो भी आपकी हॉबी है, कोई जज नहीं करने वाला है, वो आपकी पर्सनल हैप्पी प्लेस है, आपकी पर्सनल हॉबी है, आपका पर्सनल सेफ स्पेस है. जैसे खुशी का यहाँ पे सिंगिंग है. आई लव टू राइट. तो मैं जब भी स्ट्रेस फील करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स है या कुछ भी रैंडम चीज पे मैं लिखती हूँ. I write a lot of blog articles as well. तो हर किसी का अलग अलग रहता है, तो it's like वो काफी काम करता है. At that point of time stressful feel नहीं होता है. तो listening to music, talking to somebody, और simply just looking at memes and laughing, और watching a movie. Netflix है हमारे पास, सबके पास. So जो भी आपकी है, that can help basically. तो first step is identify कि आपको क्या पसंद है करना.
स्ट्रेस क्या हो रहा है वो तो हमने अवेयरनेस में आइडेंटिफाई कर लिया। ये आइडेंटिफाई भी बहुत जरूरी है करना कि आपको क्या पसंद है करना, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट इज योर हैप्पी प्लेस, आपका हैप्पी होम कहाँ है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द टेक्निक्स विच कैन हेल्प इन स्ट्रेस, जिसमें ज्यादा कुछ हमें वर्क नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमारे पास। देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट की एज लाइक जितनी भी स्टडी करी है मैंने, आज से स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सबके पास ऑलरेडी टूल किट है, उसको कैसे यूज करना है वो बस पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो आवर सेकंड इज सेल्फ टॉक। स्ट्रेसफुल टाइम पे हम बहुत ज्यादा कभी कभी नेगेटिव वे में चले जाते हैं या नेगेटिव टॉक पे आ जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि यार ये मुझसे हैंडल नहीं होगा, या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा ये, या इतना स्ट्रेस है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझसे नहीं, मैं हेल्प नहीं मांग सकता, मैं क्या करूं ऐसे टाइम पे। सो इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर लाइक हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, बट बिहेवियरल और डाइट में चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी काफी अटैच्ड हैं ये सब चीजों के साथ। सो साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इट लीड्स टू डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियक अरेस्ट एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें होती है, और आपका इम्यून सिस्टम भी कहीं हिट लेता है। एंड ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे वी रियली डोंट वांट दैट कि इम्यून सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम्स आए और योर हेल्थ इज अग्रीड आई एम सेइंग आपकी हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम आए कभी भी कहीं पे भी। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये नहीं कि लाइक आई अंडरस्टैंड लाइक कभी कभी कैसा होता है कुछ सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना काफी मुश्किल रहता है बिकॉज वो स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है या फिर कुछ बहुत जेन्युइन होता है उस टाइम पे, ठीक है, बट दीज आर टेक्निक्स जो हर टाइम नहीं, बट कभी कभी यू कैन मिक्स टेक्निक्स एंड यू कैन फॉलो दोस। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वेर यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग कि नहीं मुझसे नहीं होगा, अरे यू शुड जस्ट से अरे कोई बात नहीं, आ गई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, प्लान नहीं थी, लेट मी ट्राई, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेट मी ट्राई, मैं क्या चीज यूज करूँ, और अगर नहीं समझ रहा है कि क्या करना है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू समबडी, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, मॉम, डैड, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, आस्क देम फॉर योर हेल्प एंड वी आर ऑलवेज देयर। हम प्रोफेशनल्स हमेशा हैं, कभी भी कुछ ऐसा लगे तो यू शुड ऑलवेज टॉक। तो बेसिकली जो सेकंड टेक्निक है इट्स अबाउट टॉकिंग। वन इज विद योर सेल्फ, आप जितना अच्छा लोगों के साथ रहते हो उतना अच्छा खुद से भी बात करिए, खुद को भी अच्छा रखिए, ओके, दैट इज द सेकंड। Yes, and the third is lifestyle and dietary changes. So काफी टाइम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जब एग्जाम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो हमारी आप लोगों ने, काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि खाने का मन नहीं करता है या फिर बहुत लो फील होता है, एंड वो जस्ट इट्स अ वे ऑफ आवर बॉडी सिग्नलिंग कि अच्छा अभी शुगर लेवल कम हो गया है एंड न्यूट्रिएंट्स लेवल कम हो गए हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ब्रेन पे। तो डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि नींद पूरी करना, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी क्यों यूज होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, समटाइम्स व्हाट यू कैन डू इज स्लीप ओवर इट, नैप ले लो, कल देखो, पुश इट टू टुमारो, जहां पॉसिबल है। जहां पॉसिबल नहीं है और इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे यू हैव टू सॉल्व इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पे आप पुश कर सकते हो चीजें, या फिर आपको पता है कि हाँ मैंने कल भी डिसीजन ले लिया, कुछ जल्दी नहीं है, ठीक है, अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ, अभी मेरा माइंड ठीक से अभी मैं जगह पे नहीं है, या फिर आई एम नॉट इन माई हैप्पी प्लेस टू डिसाइड एनीथिंग, सो पुश इट अहेड, स्लीप इट ओवर एंड सी। कभी कभी ऐसा होता होगा लाइक आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रात को और आप सो गए, सुबह उठ गए और फीलिंग बेटर, कई बार होता होगा ऐसे, राइट? आई एम श्योर मोस्ट कैन रिलेट, बिकॉज आई कैन रिलेट। मेरे को जब भी कभी कभी स्ट्रेस होता है, मैं सीधा नैप के लिए चली जाती हूँ एंड देन फ्रेश होके आई स्टार्ट थिंकिंग बेटर कि हाँ मैं गलत डिसीजन लेने वाली थी, बट अब आई एम फ्रेश नाउ, कैन लाइक माई ब्रेन हैज गॉट रेस्ट, माई बॉडी हैज गॉट रेस्ट, तो इट हेल्प्स। सो स्लीप, लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डाइटरी चेंजेस, ज्यादा देर भूखे रहना या फिर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड,
या फिर बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग, जैसे नेटफ्लिक्स के सामने बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो और मतलब खाए जा रहे हो पॉपकॉर्न एंड व्हाट नॉट। सो थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल उस पर हमने रखा, बिकॉज साइंटिफिकली ये रिसर्च में प्रूवन है कि डाइट जो है हमारी, वॉट एवर डाइट वी फॉलो, या फिर जो कैफीन इनटेक है, जो टी इनटेक है, सो ऑल यू टी एंड कैफीन लवर्स, दैट इज वन पॉइंट वेयर जहाँ पे जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो उसको बढ़ाइए मत, उसे थोड़ा कम ही रखिए तो बेटर रहेगा आपके बॉडी के लिए। सो दैट इज, आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई माई सेल्फ एम अ कॉफी लवर, आई एम इंसेन कॉफी लवर, बट देन कोशिश करती हूँ मैं जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए या फिर मैं बहुत काम कर रही हूँ, कुछ ज्यादा स्ट्रेस है, मैं इनटेक थोड़ा कम रखती हूँ, लाइक 1 cup a day or something like that. I try to do it, difficult है, but थोड़ा बहुत अपने साथ assertive रहोगे, थोड़ा try करोगे तो nothing is impossible, seriously. Second is like the last one is relaxation techniques, which are very important. तो कभी कभी क्या होता है, ये सब चीजें जो मैंने लिस्ट करी हैं वो करने के बाद भी आप बोलोगे कि मैम मैंने ये बहुत बार ट्राई कर लिया, मुझसे अब नहीं हो रहा हैंडल स्ट्रेस। सो उस टाइम पे क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे जहां पे भी हो आप, जरूरी नहीं है घर पे हो या बंद रूम होना चाहिए या मेडिटेशन रूम होना चाहिए या फिर आप कहीं योगा क्लास जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वेर एवर यू आर, आप ऑफिस में हो, आप जिम में हो, आप रोड पे हो, आप घर पे हो, आप कहीं पे भी हो, आप किसी के भी साथ हो, जस्ट क्लोज योर आईज, इमेजिन अ हैप्पी प्लेस जहां आपको बहुत पसंद है जाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बीच में जाना, आई लव बीचेस, तो इमेजिन यू आर देयर एंड जस्ट सिंपली ब्रीथ, कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग, थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए। सो उससे क्या होता है, इवन इफ यू डू इट 5 or 6 times या 10 times, मैक्सिमम 10 times, इट्स आई थिंक 30-40 seconds 50 seconds लगते हैं आई थिंक एक्टिविटी में, यू विल रियली फील रिलैक्स्ड, थोड़े ब्रेन को पावर मिल जाती है एंड बॉडी को पावर मिल जाती है टू डील विद समथिंग, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, इट्स फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। तो सर्वाइवल पे आ जाता है जब बॉडी को स्ट्रेस का, ब्रेन को स्ट्रेस का सिग्नल मिलता है, कॉर्टिजोल करके एक रिलीज होता है ब्रेन में, इट्स वन ऑफ द फेमस, आपने पढ़ा भी होगा, इट्स वन ऑफ द फेमस न्यूरोट्रांसमिटर्स, वेयर इट टेल्स योर बॉडी कि अभी कुछ डेंजर है, कुछ होने वाला है। तो इसलिए वो चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, द बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग कि हाँ भागना है या फिर बचना है या फिर क्या होने वाला है क्या पता। तो बेसिकली जस्ट ब्रीदिंग एंड टेलिंग योर बॉडी एंड योर ब्रेन टू काम डाउन कि यार एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, चुप हो जाओ, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। सो दीज आर वेरी फ्यू सिंपल टेक्निक्स जो आप कहीं पे भी हो, whenever you feel stressed you can follow and trust me, एक बार बहुत सिली लग रही है ये कि हाँ मैं रोज करती हूँ मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट माइंडफुली अगर आप एक बार ट्राई करेंगे सीरियसली इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स काफी हाई है। Exactly. Ma'am, I also want to add one more point to whatever you have said, and that is take a break. Like, you know, break लेना is very important. और ये चीज मैंने खुद ने like 2 दिन पहले ही एक्सपीरियंस की है। Like I was so much stuck up with one work and I was feeling like I am stressed out with these things. So मैंने break लिया and I had again started this thing today and I am feeling so much excited about the things which I am doing. So break is very much important, I think. डेफिनेटली ब्रेक लेना काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर यू सिंपली डू समथिंग विच यू लाइक। सो मैंने जैसे बोला ना, आपकी हॉबी करो या कुछ एक्टिविटी करो, जैसे बहुत स्ट्रेसफुल काम आपका है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो काम पे और आपकी डेडलाइंस, आपको पता है डेडलाइन है, या फिर यू आर स्टडिंग एंड यू नो एग्जाम है और मुझे इतना सिलेबस एक दिन में कवर करना है, तो जरूरी नहीं है कि एक बार में बैठ के हो जाएगा या फिर तभी करना है। यू कैन ऑलवेज टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स एंड डू थिंग्स यू लाइक। उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस, मैंने वो जो स्ट्रेस नहीं रहेगा, मैं ये कह रही हूँ कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा विद टाइम एंड यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन वर्क एंड योर एग्जाम्स और एनीथिंग, कहीं पे भी। तो वेरी अमेजिंगली सेड खुशी, ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, I agree with your point. Okay, so now let's move to Q&A section. Okay, so ma'am, my first question is, just अभी lockdown period चल रहा है and everyone is stressed out in some or the other ways. Like just take an example, students हैं, IIT और NEET के पेपर हैं, they are very much stressed out with this कि हम पेपर कैसे देंगे, हमने preparation अच्छे से नहीं किया, and at the same time हम parents को देखें तो they are stressed out because of unexpected results.
क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, और अगर की भी है तो इतना रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए. सो हाउ कैन वी टेक अ टर्न टुवर्ड्स रिलैक्सेशन इनटू दिस सिचुएशन? सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस हमारे जो स्टूडेंट्स साथ में हैं वो बहुत रिलेट करेंगे इससे. एंड इट इज लाइक मैंने भी जितने क्लाइंट्स देखे हैं तो उनमें भी लाइक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स को डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेस रहता है कि मेरे बच्चे ने आई डोंट थिंक वो प्रिपेयर्ड है, या क्या होगा, मार्क्स आएंगे या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं. एंड ऑलरेडी स्टूडेंट पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एक एडेड प्रेशर है. उसके ऊपर पेरेंट्स का थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है कि आई डोंट हैव टू लेट देम डाउन, या फिर मार्क्स अच्छे आने चाहिए, या फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे अगर मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई. तो ये जो मैंने जो टेक्निक्स बताई है उसको हम एक्चुअली स्टडी हैबिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए. क्योंकि अगर पेरेंट्स ही प्रेशराइज करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर स्टूडेंट टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो क्या होता है, हर जगह से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है और हर जगह से स्ट्रेस बम्बार्ड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है. उसमें क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी फिर एट द एंड खत्म हो जाती है. तो जब तक आप एग्जाम हॉल तक पहुंचते हो और आप एक्चुअली टाइम आता है कि आपके ब्रेन को काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है क्योंकि इतना प्रेशर पड़ चुका है ऑलरेडी पहले, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसमें पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके, यू शुड नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट देन हर बच्चे का अलग कैलिबर रहता है, हर स्टूडेंट का अलग बेस्ट है. जैसे अगर मेरा बेस्ट 70% है तो किसी और का बेस्ट 90% है, 99% है. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर या फिर डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस रखना, इट्स बेटर कि आप तो अंडरस्टैंड कर सकते हो एज एन अडल्ट कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है. समटाइम्स उस सिचुएशन में स्टूडेंट को रियलाइज भी नहीं होता है कितना प्रेशर बेचारे वो उनके ऊपर है, विच अफेक्ट्स देयर हेल्थ. उनकी हेल्थ से दिखता है, उनके बिहेवियर से दिखता है, रात रात को जागते हैं, सोते नहीं है, खाने पीने में इश्यूज रहते हैं. तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, एज यू सेड, एक रात में नहीं करना है पूरा सिलेबस, एंड अपने आप में थोड़ा बिलीव रखना है, ट्रस्ट करना है. यू हैव टू ट्रस्ट योर स्किल्स कि हाँ, जितना भी मैंने किया है मैंने ठीक किया है, मुझे उतना परफेक्टली आता है. सो इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इट्स ओके अगर आपके कलीग ने या आपके जो फ्रेंड है उनसे आपकी बात हुई है कि उसके 4 चैप्टर्स हो गए, या फिर पूरा NEET का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिविजन पे आ गया, एंड यू आर स्टिल स्टक ऑन चैप्टर 2. इट्स ओके, वो आपका पेस है, उसमें प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है. तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज आई सेड ABC स्ट्रेटजी, पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने आप में कि ठीक है वो उसका बेस्ट है, ये मेरा बेस्ट है. मेरा उसका टारगेट है फुल सिलेबस, मेरा टारगेट है मैं जितना भी करूंगा मैं बेस्ट करूँ. तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हाउ मच एवर आई एम डूइंग, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं बेस्ट करूंगी. तो मैंने टारगेट बनाया है कि मैं 15 में से 7 चैप्टर्स करूंगी, वो मेरा बेस्ट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ. एंड यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, ये बहुत कोशिश करी, बहुत हार्ड वर्क किया, तो वो मोटिवेशन थोड़ा बहुत एल्डर्स से मिलता है, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थोड़ी कम होते जाती है. So what you can do is take breaks, sufficient study breaks, do things you like to do. आपको ऐसा नहीं है कि अच्छा कल 2 दिन में पेपर है तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे. अरे आपको वॉक करने जाना पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद है, so then try and do that. या फिर मीम्स देखो, फ्रेंड्स से बात करो, eat what you like. तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जब आपका फेवरेट खाना सामने रखा हो या केक रखा हो या पेस्ट्री रखी हो, यू ऑटोमेटिकली वो एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग रियली गुड. तो डू स्मॉल थिंग्स लाइक दिस कि स्टडी के टाइम पे व्हेन यू आर स्टडिंग एक्चुअली, तो आप कंसंट्रेशन लगा के पढ़ रहे हो, जितना टारगेट है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 घंटे का टारगेट है, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक रिवॉर्ड रखिए अपने लिए. जैसे क्या होता है कि हाँ ठीक है, 1 चैप्टर कर लिया, चलो नाउ 1 चॉकलेट फॉर मी, या फिर 1 माय फेवरेट डिश फॉर मी, या फिर नाउ आई एम गोइंग टू ईट, अब मैं गाने सुनूंगी. अच्छा ठीक है, वो हो गया, ठीक है, अभी बैक टू स्टडीज. तो वो बैक टू स्टडीज आना बहुत जरूरी है. तो
ऐसी स्टडी टेक्निक एंड गेम्स एंड व्हाट ऑल जो भी है यू कैन डू, बट व्हेन यू आर डूइंग दैट मेक श्योर कि हाँ मैम ने बोल दिया या किसी साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया ब्रेक लेना है, मतलब वो चल ही रहा है उतना और पढ़ाई हुई नहीं. यू शुड सेट टाइम टेबल. जैसे 1 घंटे की पढ़ाई है तो फॉलो दैट. 1 घंटा पूरा रिलीजियसली पढ़िए. उसके बाद आपको सेट करने की 1 घंटा रिवॉर्ड, मैं पढ़ी हूँ उसका रिवॉर्ड है आधा घंटा व्हाट आई लाइक टू डू, या फिर वॉचिंग मूवीज. सो हाफ एन आवर आई वॉच वन एपिसोड हाफ एन आवर का मोस्टली रहता है, एंड देन आई कम बैक. ठीक है. So we can try this. Students can try this, and it helps. थोड़ा बहुत assertive रहना पड़ता है कि बहुत पसंद है वो करना, but हाँ coming back to studies it's like यार नहीं करना है. But थोड़ा बहुत अपने आप को push करना पड़ता है. And यहाँ पे parents का role भी आता है where they allow you to do certain things for certain time and then they push you back. तो external और internal push दोनों यहाँ पे काम करता है. Exactly. I just wanted to share a story. When I was a small child, मेरी मामा मुझे बोलती थी कि अगर रात को वो सीरियल देखना है तो तुम्हें पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा. So I used to study a lot. Like हाँ, रात को अगर आधा घंटा वो सीरियल देखने के लिए. Yes. Exactly. Yes, that's what I'm saying. एक external एक मम्मी का push हमेशा लगता ही है. मुझे भी लगता था when I was giving my exams. तो मेरा क्या था कि I'm a sweet tooth. मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है. तो I used to be like mom, मैं ये 4 chapters कर रही हूँ, आप मुझे पेस्ट्री ला के देना उसके बाद. That actually later I understood कि हाँ ठीक है, okay, that actually motivated me कि नहीं, ये 4 chapter मेरे नहीं हुए तो आज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. Yes, very true. So all in all, if it's okay if you are not good at one thing, you can be better at 10 others. So try to focus on that 10 others, right? Don't make that thing stress कि हाँ मुझे वो एक चीज नहीं आती है and I try to learn that. No, it should not be like this. Yes. So moving to our next question, ma'am, stress is an emotional word, but when it comes to a person, ये हमें इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली तीनों तरीके से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है. तो आप इस पॉइंट को कितने एक्सटेंड तक एग्री करते हैं? I agree to it totally. Like आपने मेरी जब मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की सिंपल टूल किट या टेक्निक भी बताई, उसमें भी मैंने काफी बार मेंशन किया है कि स्ट्रेस इज नॉट ओनली आप एक्सटर्नल प्रेशर या फिर बॉस से झगड़ा हो गया, काम नहीं हुआ, डेडलाइन नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई. इट्स नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल, इंटरनल भी काफी इफेक्ट करता है. तो सोशल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग. मैं एक्चुअली एक रिसर्च शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, जहाँ पे इट वाज अ सर्वे ऑफ 2017 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जैसे हार्ट अटैक एंड अदर थिंग्स, इंडिया में उसका स्ट्रेस की वजह से 80% राइज था मॉडर्न डिजीजेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. नाउ इमेजिन वो हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्ट करता है. तो डेफिनेटली इट हैज फिजिकल इफेक्ट्स, इट हैज मेंटल तो है ही है. द मिनट यू फील स्ट्रेस, आपका मेंटल कैपेसिटी या ब्रेन काम करना, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चलता. इट्स अ बेसिक डायलॉग, हम फ्रेंड्स का भी सुनते हैं या खुद पे भी लगता है कि यार आज मैं स्ट्रेस हूँ, आज नहीं होने वाला बेसिक. सो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर मेंटालिटी, इट अफेक्ट्स योर सेल्फ. जो सेल्फ टॉक आप देते हो स्ट्रेस में होते हो कि यार मेरे को समझना चाहिए था, इस सिचुएशन मेरे को समझी क्यों नहीं, मैं क्यों हूँ इस सिचुएशन में, मैं बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी या नहीं. सो यस, मेंटली बहुत इफेक्ट करता है. आपके सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करता है. आप कैसे अपने आप को जब मिरर में देखते हो अपने आप को, आप कैसे फील करते हो अपने बारे में, उस पर भी इफेक्ट करता है. हेल्थ पे तो आपके करता ही करता है. आपकी इम्यून सिस्टम, मैंने जैसे बताया कि इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, you start catching a lot of immune system low है तो you start catching a lot of illnesses जो which can be avoided. And socially, you put a point of socially, yes. इसमें मैं example देना चाहूंगी, and खुशी I will use you for the example, where for example मेरा आज promotion हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, and आप मेरी best friend हो और मुझे आपको phone करके अभी बताना है कि खुशी मेरा प्रमोशन हुआ है, एंड यू नो आई वांट टू बी वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस विद यू और माय बेस्ट फ्रेंड और एनीबॉडी. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो आपका, लेकिन ऑन द अदर हैंड यू आर अ बिट स्ट्रेस टुडे क्योंकि आपके बॉस से आपको डांट पड़ी है कि आपकी डेडलाइन मीट नहीं हुई है, आपको जो काम दिया गया था वो हुआ नहीं, एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड कि मैं
अच्छा अभी बॉस से तो डांट पड़ गई, आपकी इमेज पे प्रॉब्लम आ गई अब कंपनी में, पर आप अभी फोकस कैसे करोगे, और आपको डेडलाइन है अभी कल की, आपको देना ही देना है। एंड मैं यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी, ओके, एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, अब मैं क्या करूँ, हाउ डू आई हैंडल, आप वो माइंड फ्रेम में हो कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, एंड ऑल। मैं आपको कॉल करती हूँ एंड यू आर लाइक, आई एम लाइक खुशी ये खुशी वो, आई गॉट अ प्रमोशन, आई एम वेरी हैप्पी, चल पार्टी करते हैं, चल मिलते हैं, लेट्स गो फॉर कॉफी। एंड यू आर लाइक, यू लैश आउट ऑन मी, आप गुस्सा हो जाते हो मेरे पे कि यार तू कैसी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा तो पूछा नहीं, मैं तो इतनी स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे को बॉस ने दिया, आज ऊपर से तेरे को पार्टी चाहिए, तू अपना देख रही है, तेरा प्रमोशन हो गया, मेरा क्या। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी सोशली भी प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट इन दैट माइंड फ्रेम टू सोशलाइज और सोशली भी देयर फॉर अ पर्सन, या हम बोलते हैं ना सिंपैथी एम्पैथी देना, कि मेरी खुशी में आप भी खुश हो रहे हो, या मेरे स्ट्रेस में आप भी हो रहे हो, तो दैट वाज योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब आपने तो बोल दिया, बाद में आपको गिल्टी फील होगा कि शिट यार मैंने ऐसे क्यों बोला, बट एट दैट पॉइंट यूर लिटरली, मुझे कैसा फील होगा कि यार ये क्या था, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एंड ऑन द सेम टाइम मेरे दिमाग में क्या होगा, आई विल स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद यू, I will get sad, I feel like shit, I should, उसका it's a bad thing for her, मुझे उसके साथ रहना है, तो ऑटोमेटिकली my happy thing, मैं आपके साथ, आपको स्ट्रेस था तो आपके साथ अब मुझे भी हो गया। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट अफेक्ट्स सोशली, ना जानते हुए भी, लाइक इसमें आपकी गलती तो बिल्कुल नहीं थी, आप स्ट्रेस थे एंड जेन्युइन था आपका रीजन, मेरा भी रीजन जेन्युइन था, गलती किसी की भी नहीं थी, बट यस स्ट्रेस वेरी मच, हम जानते भी नहीं है कहाँ, बट कहीं ना कहीं एंगर बर्स्ट, बर्नआउट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। So Exactly. I completely So agree with your statement. all in all, I want to say just try to be assertive, not aggressive, and that is Yes. very important. Very important. Exactly. Okay, so now ma'am, this is my personal question to you. क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है वेयर यू आर फीलिंग लाइक आई एम सो मच स्ट्रेस्ड आउट, एंड अगर आई है तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? अरे बहुत आई है, मैंने कितने एग्जांपल्स भी दे दिए अभी। तो आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड अबाउट रैंडम थिंग्स, कभी कभी जैसे होता है कि अरे लेक्चर देना है, सेमिनार देना है, या फिर क्लाइंट से बात करने के पहले मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि शिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे एज अ प्रोफेशनल, मैं कर पाऊंगी या नहीं, वो थॉट्स तो रहते ही है। लाइक ऐसा नहीं है कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट या फिर मैं फील्ड में काफी टाइम से हूँ तो मेरा वो माइंडसेट प्रॉपर बना हुआ है, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड स्ट्रेस तो सब होता है, फैमिली प्रेशर भी कभी कभी बहुत होता है, तो आप मेरी मम्मी से पूछ सकते हो मैं कितना उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन कभी कभी चिल्ला देती हूँ एंड ऑल। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, आई रिड्यूस, ये सब काफी रिड्यूस हुआ है, व्हाट आई ट्राई टू डू इज, जब मैं ऐसा फील कर रही हूँ आई ट्राई टू, एज आई सेड मेरी हॉबी है, आई लव टू राइट, आई राइट थिंग्स डाउन, तो इंस्टेड ऑफ वर्बली किसी को बोलना या फिर किसी को किसी के साथ सिंपैथाइज या एम्पैथाइज करना, आई राइट इट डाउन, मैं मेरी बुक में लिख देती हूँ एंड ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा फील होता है। उसके बाद आई ट्राई टू डू समथिंग विच आई लाइक, तो मुझे एज आई सेड मुझे मीठा खाना पसंद है एंड आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी ऑल्सो, सो आई ट्राई टू ट्रीट माई सेल्फ बेसिकली कि नहीं आई एम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाँ ठीक है मुझे डेडलाइंस है, सब हो जाएगा, आई ट्राई टू पॉजिटिव वे में अपने आप को लेके जाती हूँ, विद दैट आई गिव रीइंफोर्समेंट टू माई सेल्फ कि नहीं ठीक है, एक काम करती हूँ, अभी आई लिसन टू म्यूजिक, या फिर अभी आई माइंड डाइवर्ट करने के लिए चलो मैं नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज का एपिसोड देख लेती हूँ, मे बी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वहां से फिर सोचूंगी, या फिर बेस्ट इज जस्ट रूम में जाओ, सो जाओ, व्हेन यू गेट अप यू आर कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। सो दीज आर सी द वो ट्रिक्स मेरे भी एक्सपीरियंस में है, जो मेरे भी काम आई है, और काफी लोगों को जिनको मैंने सजेस्ट करी है उनके भी काम आई है, all that I have listed as a stress management tool. So tried and tested, I trust me. Exactly, ma'am. I also want to share my point, like, you know, I am in stress, so I just follow these 4 A's, and these are said by one of my mentors, and these are like, first thing, I avoid the thing. I too write. I am a content creator at Webicon India, so you know, if someone criticizes you, that's okay, but you know, you should always ignore the stupid criticism. एंड कुछ लोग इन चीजों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि ये बहुत इंटरनली अफेक्ट करता है आपको, राइट?
And the second is I try to alter the things. If I am working on a goal, so and if some strategies are not working, just change your strategy. Never change your plans, right? The third thing which I follow is accept. Exception is very much important because if you are doing something, तो ये बहुत मैंडेटरी होता है आपके लिए कि आप चीजों को एक्सेप्ट करें और आप उन चीजों से. द फोर्थ ए इज अडेप्ट. इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग अ सर्टेन सिचुएशन तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे एंड दैट विल बी द वर्स्ट सिचुएशन. ट्रू, वेरी ट्रू. एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूसरी 4 बनती है. वेरी ट्रू. So I'm really glad you're following all that. It's amazing, and I'm sure it must be helping you stressful situations. Exactly. मेरे को बहुत stress होता है and I follow these steps like go on a walk or be your own friend, and all these are some tricks. Okay, so now I want our audience to ask some question on stress management. अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो you can ask it again. Okay, so by the time audience question पूछती है, मैम, I want you to say some words about Webicon. Definitely. As I've been in touch with you since a very, very long time, and it's been a pleasurable experience overall. आप जो काम कर रहे हो and the amount of work you guys have put into the field, it's amazing. I'd like to congratulate all of you, the entire team, especially Khushi. I've troubled you so much for content. मैंने इतने बार आपसे for the content and poster and everything, and you guys have just been very sweet to me. मुझे एक्चुअली एक बात पे लगा था कि नहीं, अभी ये डांट देंगे मुझे कि मैम बस हो गया, बहुत नखरे कर रहे हो आप. But then yeah, beautiful team, beautiful startup, and very amazing. Like, please, I hope and I wish to see myself with you guys more and more often, and I hope कि आप बहुत आगे बढ़े. Thank you so much. We are also looking forward to organize these types of webinar with you again and again. And I personally feel like कि you are amazing. You are simply amazing. Like जितना talk शायद मेरा किसी से नहीं हुआ है, उतना you are the expert, and you know there is no difference in between us while talking. So that is the thing which I like the most. I'm glad. मेरा yeah, thank you. Sorry? मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया अभी. Yes. Okay, so I think there are no question from audience side और उन्हें सब समझ आ गया है stress management क्या होता है. Okay, one more thing I wanna ask is you know like हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत आता है, बट मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि स्ट्रेस इज नॉट you know it can't be measured in a quantity like 1 लीटर स्ट्रेस से निकाल के रख दो या 1 किलो स्ट्रेस से निकाल के, but still we all the time say कि स्ट्रेस को मैनेज करो. कैसे मैनेज करेंगे स्ट्रेस को? स्ट्रेस इज नॉट द थिंग which is to be managed, but हमेशा हम ऐसा बोलते हैं. why? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे जिस वे में मैं रिएक्ट करती हूँ स्ट्रेस को वो डिफरेंट होगा, जिस वे में आप सेम सिचुएशन में रिएक्ट करोगे वो डिफरेंट होता है. इसलिए हम मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर सब्जेक्ट भी है एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट साइकोलॉजी में. इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से आपको इफेक्ट हो रहा है तो उसमें लेवल्स रहते हैं. जैसे माइल्ड स्ट्रेस रहता है, मॉडरेट स्ट्रेस रहता है और एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता है. तो एक्सट्रीम स्ट्रेस में डिस्कस किया मेंटली सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन अ टॉस. आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हो एज ए इंडिविजुअल, आप ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, आप घर पे ठीक से नहीं हो, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, आपकी पढ़ाई पे कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है, नथिंग इज वर्किंग आउट. सो दैट इज अ पॉइंट पर हम बोलते हैं कि अरे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया स्ट्रेस. ठीक है. एंड मॉडरेट एंड मीडियम स्ट्रेस दैट इज समथिंग लाइक कि हाँ चलो मैनेजेबल है, या फिर जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या गुस्सा आता है, so that is somewhere where we put it as mild, moderate and medium. इसलिए जो ये 3 segregations हैं stress के, where we all react, we all are humans, we all are unique, we all react in a very different way. तो इसलिए ये segregations करे हैं stress के. That's why it's called stress management, कि किसको कितने level की intervention चाहिए where you're managing stress. So okay, I think तो आज मेरे को पहली बार ऐसा आंसर मिला. मैंने बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पूछा but nobody could be able to answer this question.
So okay, now I am comfortable with this. Yeah. Okay, ma'am. So now it's a wrap up time. It's already been 40 minutes talking with you. So I Amazing. personally feel so much privileged talking with you, and thanks for giving the precious time. And you So are also much. doing awesome. Thank you so much, ma'am. We'll see you next time. Thank you.